Welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. Today we are going to continue our topic advertising budget. In the previous video we have already discussed the meaning of advertising budget and the factors that influence advertising budget. Today we discuss in detail the two approaches which are famous for setting advertising budget and the methods under them, and then we move on to allocation of advertising budget. Alright, so let us directly move to approaches. There are two approaches with which advertising budget could be set up. First one is top down approach and second one is bottom up approach. In top down approach we are going to study these four methods, which are affordable method, arbitrary allocation method, percentage of sales method, competitive parity method. And in bottom up approach we are going to study three methods: objective and task method, payout planning and quantitative model. सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बजट को कैसे सेट किया जाता है. इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन में हम चार तरीके पढ़ेंगे जिससे हम बजट सेट कर सकते हैं. अलग अलग तरीके हैं, उसमें से कंपनी कोई भी चूज़ कर सकती है, जो कि अफोर्डेबल मेथड, आर्बिट्री एलोकेशन, परसेंटेज ऑफ सेल और कॉम्पिटिटिव पैरिटी. और बॉटम अप अप्रोच में है तीन मेथड, जो कि है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, पे आउट प्लानिंग मेथड एंड क्वांटिटेटिव मॉडल मेथड. राइट, इफ यू गो बाय द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ योर ग्रेजुएशन, मोस्टली आपको परसेंटेज ऑफ सेल, कॉम्पिटिटिव पैरिटी आता है, या अफोर्डेबल और आर्बिट्री में डिफरेंस आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव एंड टास्क एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. राइट, हम एक एक करके इन सबको देखते हैं. टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट सेट करती है कि आपका कितना बजट होगा और एडवर्टाइजिंग बजट उसके अंदर ही होना चाहिए. सो इन टॉप डाउन अप्रोच द टॉप मैनेजमेंट इज सेटिंग द लिमिट and then the advertising department has to do activity within that set budget, right? So we see that the decision making authority is the top management, and we see here the objective and strategies are not linked to each other, whereas in the bottom up approach, first we set the advertising objective, then you have to decide what all activities are necessary to achieve that objective, then you will determine the cost of all those activities and then you will add up to get the total budget. So bottom up approach में हम क्या करते हैं, हम पहले अपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, देन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी है वो डिसाइड करते हैं. फिर एक एक एक्टिविटी का हम कॉस्ट पता करते हैं और उस कॉस्ट को टोटल करके हम टोटल बजट बनाते हैं. ये बजट टॉप मैनेजमेंट पास करती है पूरे का पूरा और मॉडिफाई करके जैसे भी टॉप मैनेजमेंट को सही लगता है. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मेन कंसिडरेशन क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से आपका बजट तय होता है. So whatever your objectives are, according to that you are getting the budget. So let us move to top down methods. We will discuss one by one each method, what the method is and what are the advantage and disadvantage or pros and cons, and then we move to the bottom up methods and do the same. So top down method हम पढ़ते हैं एक एक करके. The first one is affordable or all you can afford method. As the name suggests, you can see under this method the firm is giving whatever it can afford after spending on other important expenditure to advertising. So no consideration is given to advertising objective, and if other elements are properly allocated, it is felt that whatever amount advertising is getting is sufficient. सो अफोर्डेबल मेथड में क्या होता है कि आप एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजिंग को उतना पैसा देते हैं जितना टॉप मैनेजमेंट को सही लगता है, जितना टॉप मैनेजमेंट अफोर्ड कर सकती है. और ये अफोर्ड क्या कर सकती है, जो आप इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले पैसा दे देते हैं और जो बचता है वो आपको लगता है कि उतना ही सही है एडवर्टाइजिंग के लिए. सो
एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज़ कि ये मेथड बड़ा इजी है, सिंपल है, मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पर है, फ्लेक्सिबल है, राइट। लेकिन नेगेटिव्स क्या है कि ये सिस्टमैटिक थिंकिंग को लैक करता है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा, और आप कितना दे रहे हो उसका कोई बेसिस नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देख रहे हो, तो चांसेस हैं कि आप अंडर स्पेंडिंग या ओवर स्पेंडिंग कर दो, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे दो या ज़रूरत से कम पैसा दे दो, राइट, विच बोथ द सिनेरियोज आर हार्मफुल फॉर द बिजनेस। सो दोनों ही बिजनेस के लिए हार्मफुल हैं। सो ये था पहला मेथड, अफोर्डेबल मेथड। नेक्स्ट मेथड इज आर्बिट्री एलोकेशन मेथड। इन दिस you are allocating a fixed amount to advertising, but the fixed amount is being determined randomly. So यहाँ पर हम allocate करते हैं बजट कुछ परसेंटेज, लेकिन वो परसेंटेज क्या होती है, वो परसेंटेज वो होती है जो मैनेजमेंट को नेसेसरी लगती है। सो वट एवर द मैनेजमेंट फील इज़ नेसेसरी, उतना आप आर्बिट्रली एलोकेट करते हो, राइट। सो पहले वाले में था कि जितना बाकी एक्टिविटीज़ में से बचेगा उतना आप एलोकेट करते हो। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आर्बिट्री एलोकेशन हो रहा है, कुछ अमाउंट फिक्स किया जा रहा है, लेकिन वो अमाउंट किस बेसिस पे फिक्स किया जा रहा है वो डिटरमाइन टॉप मैनेजमेंट की मर्ज़ी से होता है। सो टॉप मैनेजमेंट इज़ डिसाइडिंग हाउ यू हैव टू एलोकेट। सो अगेन इट इज़ ईजी, टॉप मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पर है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन नेगेटिव्स आर ऑलमोस्ट द सेम कि कोई प्रॉपर बेसिस नहीं है, किस बेसिस पे 5% 10% दे रहे हो वो फिक्स नहीं है। एंड अगेन ये मेथड लैक्स सिस्टमैटिक थिंकिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, विच इज़ relatively better than first two methods. As the name suggests, advertising is allocated amount which is dependent on sales. So you are allocating certain percentage of sales to the advertising, right? It is commonly used for large and medium size companies. So यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितनी हमारी सेल्स है उसका कुछ परसेंटेज हम एडवर्टाइजिंग को एलोकेट करते हैं। Now the question is which sales? I am saying sales, but which sales? Right. So this could be your last year sale, right? पिछले साल की जितनी सेल है उसका आप 5% 10% दे सकते हैं, या अगर आप एक नई कंपनी है तो आप अपनी सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्टेड सेल्स का परसेंटेज ले सकते हो, या और बेहतर रहेगा कि आप एवरेज सेल्स ले लीजिए। सो लास्ट 3 ईयर सेल एवरेज ले लीजिए एंड देन उसके ऊपर 5% 10% लगा दें, या आप पूरी जो कॉस्ट है उसका पर यूनिट कॉस्ट का कुछ अमाउंट फिक्स कर दें। सो अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का बनता है तो आप कह सकते हो कि 100 रुपये में से हम 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये एडवर्टाइजिंग पे खर्च करेंगे, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज? सो प्रॉस, एडवांटेजेस एंड कॉन्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। सो दिस मेथड इज़ सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, सेल्स के ऊपर बेस्ड है और सेल्स की परसेंटेज आपको नंबर्स में मिल जाएगी विच इज़ ईजी टू कैलकुलेट। एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू फंड्स, जितना पैसा आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप अपना खर्चा तय कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड थर्ड, दैट मैनेजर्स हैव अ फेयर आइडिया अबाउट बजट। पहले जो दो हमने मेथड पढ़े उसमें अगर आप एडवर्टाइजिंग के मैनेजर हो आपको पता ही नहीं होगा कि कितना पैसा मिलना है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारी सेल्स इतनी गई थी तो हमें इतना पैसा मिलेगा, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बट द नेगेटिव्स आर, द फर्स्ट पॉइंट इज़ हियर वी आर सेइंग दैट सेल्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग डिपेंडेंट है। सो अगर आपकी सेल ज़्यादा हुई है तो एडवर्टाइजिंग को ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर आपकी सेल्स कम हुई है तो एडवर्टाइजिंग को कम पैसा मिलेगा, जबकि अगर आपके प्रोडक्ट की सेल्स कम हो रही है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि आप उसको और एडवर्टाइज़ कर पाओ। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में हम कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग जैसे जैसे आप दोगे वैसे वैसे सेल्स बढ़नी चाहिए। तो अगर आपकी किसी चीज़ की सेल्स कम है, आप उसको और कम प्रमोट करोगे, देन योर सेल्स विल नॉट इंक्रीज एज मच एज इट शुड बी। And if your sales are already good, then why do you need to spend more? So you can have underspending or overspending.
So here we are saying that sales, if your sales are more, you are spending more on advertising. If your sales are less, you are spending less on advertising, which should not be the scenario. So you can have underspending or overspending. Then it is not suitable for new product in which you will have forecasted sale, in which you do not have the actual sale figure, and in initial years we have very less sale if your product is new, but you need to advertise heavily. So this concept doesn't work there. It is not flexible, it is rigid, and you may lose a opportunity if you only follow the past sale. So for example, that if your competitors are heavily advertising but you are not advertising so much, then you can miss an opportunity. Or if there is some new opportunity and you are not putting as much money as is required in advertising, then you may lose that opportunity. So अगर आपके एनवायरनमेंट को आप नहीं देखते हो, खाली अपनी सेल्स को देखते हो, आप अपने सेल्स, अपने एडवर्टाइजिंग पे कम पैसा लगा रहे हैं बिकॉज आपकी सेल्स कम है, तो फ्यूचर में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो आपके हाथ से जा सकती है क्योंकि आपने एडवर्टाइज ठीक से नहीं किया. इसलिए ये एक इस मेथड का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. कमिंग टू द लास्ट मेथड विच इज़ कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड. इन दिस मेथड आप अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से खर्चा करते हैं, राइट. सो कॉम्पिटिटिव इज कॉम्पिटिटर, पैरिटी मीन्स इक्वालिटी. सो जितना आपका कॉम्पिटिटर खर्चा कर रहा है उस बेसिस पर आप भी उतना खर्चा करते हैं एडवर्टाइजिंग पे. अब कॉम्पिटिटर्स कितना खर्चा कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ट्रेड जर्नल और मैगजीन से. ये मेथड जनरली आप परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं कि आपकी सेल्स इतनी जा रही है तो आप उसका 5% 10% लगा रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स या इंडस्ट्री एवरेज इतना है, तो उस हिसाब से आप इसको मैच करके इक्विवेलेंट अमाउंट लगा सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग पे, राइट. नाउ नेगेटिव्स ऑफ दिस इज़ दैट ईच फर्म हैज़ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट. मेरी फर्म और आपकी फर्म का ऑब्जेक्टिव ही अलग हो सकता है, रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है. मैं मार्केट में एस्टैब्लिश हो सकती हूँ, आप मार्केट में नए हो सकते हो. सो वी कैन नॉट हैव द सेम एडवर्टाइजिंग बजट. यू नीड टू सी योर ओन ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, नॉट ओनली द कॉम्पिटिटर्स ऑब्जेक्टिव. सो जब आप कंपनी खोलते हैं आपको कितना एडवर्टाइज करना है ये आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि आपके कॉम्पिटिटर कितना खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, राइट. सेकेंड इज देयर इज़ नो गारंटी ऑफ ऑप्टिमम स्पेंडिंग. अब आपका कॉम्पिटिटर सही खर्चा कर रहा है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर आप उसको देखकर कर रहे हो तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ऑप्टिमम स्पेंडिंग हो रही है. सो इफ़ यू आर basing your spending on the basis of competitor, there is no guarantee that you are spending the optimum amount. Your competitors may be underspending and overspending, and if you are following them you could be doing the same mistake. The last one is that information is available only after it has been incurred. हमने इस साल में इतना खर्चा किया, हमें साल ख़त्म होने के बाद बताते हैं, एंड देन आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बेसिस पर आप करते हैं अपना खर्चा. सो यू आर posing, you are spending on the basis of past sale of your competitors or past expenditure of your competitor. So that is a last year last year information which is available, और हमको आगे का प्लान करना होता है. सो इन अ वे आगे कितना खर्चा करेगा कॉम्पिटिटर आपका, इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव स्पेंड इन लास्ट ईयर. सो अगेन दिस could not be a very good method of deciding on what you want to spend on advertising. इसलिए ये मेथड को आप क्लब कर सकते हैं परसेंटेज सेल्स के साथ, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, राइट. दिस वॉज द फर्स्ट अप्रोच, द टॉप डाउन अप्रोच, इन विच चारों मेथड में क्या था कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर रही थी. नेक्स्ट वी गो टू बॉटम अप अप्रोच. इसमें क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट देता है और फिर टॉप मैनेजमेंट उसको अप्रूव करती है. सो इन बॉटम अप अप्रोच द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इज लेइंग डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड दे आर डिसाइडिंग हाउ मच टू स्पेंड एंड टॉप मैनेजमेंट इज अप्रूविंग इट, राइट. So first one in this is objective and task method, which is very important for if you are doing graduation or post graduation. It is a very frequently asked question.
objective and task method, one question comes that objective setting and budgeting goes simultaneously and they are not two sequential activities. उसमें आपको ये आंसर लिखना होता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड का कि ऑब्जेक्टिव बनाना और बजट बनाना ये दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए, तभी आपका सही से बनेगा. लेट अस सी हाउ. सो वी से कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड बजटिंग डिसीजंस आर लिंक्ड. अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो कि मेरे को 200 मिलियन लोगों में अवेयरनेस फैलानी है और बाद में आपको बजट ही नहीं मिल रहा, तो आपका कैसे बने, आपका ये ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा, राइट. ऑन द अदर हैंड आपने 10 करोड़ का बजट दे दिया और आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं बना, तो आपकी अंडर स्पेंडिंग या ओवर स्पेंडिंग हो सकती है. सो ऑब्जेक्टिव और बजट डिसीजन साथ साथ चलना चाहिए. दे आर टू साइमल्टेनियस डिसीजंस बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है. सो पहले आप एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी और टास्क डिसाइड करेंगे और फिर उन टास्क की और स्ट्रैटेजीज़ की आप कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 30% टारगेट मार्केट जो हमारा है उसमें अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हैं. So we want to build awareness among 30% of our target market. For that we have to decide what all we have to do. So we have to advertise where on television. So in magazines, in television and on the radio. So you have to decide on television which channel, at what time, how many times, similarly for magazines and similarly for radios. So these are all the tasks you have to do. Then you have to estimate the cost for each of the media you have selected, that if you are advertising on so and so channel, how much cost will be there for magazine, for radio, and then you have to combine and make up your budget. Then this budget would be approved by the top management. So you can see that this is a very logical approach of building budget. In this you will have no underspending or overspending, and in this your objectives are getting appropriate amount of money which they need. So advantages that it is a popular method for large companies, it is a systematic approach, and it is also suitable for new companies. Then negatives, that it is very difficult to convert the qualitative into quantitative. I am saying my objective is generally the communication objective, right, which is qualitative, and it is difficult to convert qualitative into quantitative. जैसे सेल्स में सेल्स आपको नंबर्स में मिलेगी. Here we are saying that we have to increase awareness, we have to build goodwill, we have to persuade the consumers. जब हम ये काम करना चाहते हैं, it is difficult to measure, difficult to quantify them. Second, कि कौन से ऑब्जेक्टिव पे हमें कितना खर्चा करना चाहिए, ये असेस करना भी एक टास्क है. आप ये सारी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स टाइम एंड इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्स एंड इट इन्वॉल्व्स मनी. सो ये सारी जो एक्सरसाइज है बजट सेटिंग की, उसके टास्क डिसाइड करने की, इस पे जो कॉस्ट लगेगी, वेदर दैट इज़ हैविंग मोर बेनिफिट्स इज़ यू हैव टू मेजर. सो आपका जो बेनिफिट है ये सारा ऑब्जेक्टिव सेट करने से, बजट सेट करने से, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज़ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ईच टास्क. हम जो सारे टास्क लिख रहे हैं इसका एग्जैक्ट अमाउंट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सब कुछ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वी आर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच टास्क विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट वी इनकर. सो whatever budget we are framing, of course, because it is in it is today that we are planning for future. So we are estimating the cost of each task, and these cost of each task may vary due to number of reasons, right? So these are the pros and cons of objective and task method. Coming to next method, which is payout planning. See, in payout planning we say that advertising is not an expenditure but it is an investment because it will generate sales and profits in future. So advertising को हम एक investment मानेंगे, खर्चा नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि हमें आज जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, वो कुछ महीनों में, कुछ सालों तक हमको फ़ायदा पहुंचाएगी, हमारी सेल्स और हमारा प्रॉफिट बढ़ाएगी. सो वी आर इनकरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट टुडे so that we can achieve
increase awareness and product acceptance in future. So payout plan का क्या मतलब होता है? Read the last line. Payout plan means how much money is to be invested in advertising and for how long before the brand gets established and expected profit flow from the brand sales is there. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा पे आउट प्लान मतलब कि हमें कितना पैसा और कब तक लगाना है पैसा अपनी एडवर्टाइजिंग में और किस टाइम के बाद हमें उस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा मिलना शुरू होगा. सो फर्स्ट यू हैव इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड आफ्टर अ टाइम यू गेट प्रॉफिट. जैसे पहले आप इन्वेस्ट करते हैं SIP में कुछ टाइम तक और एक पॉइंट के बाद आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है, एक टाइम के बाद उसके बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं. सो ये आपका पूरा पे आउट प्लान होगा कि पहले 6 महीने हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं और आगे के 6 महीने या आगे का 1 साल हमें उसका फ़ायदा मिलेगा. सो यू हैव टू मेक दैट प्लान एंड देन you can ask for the budget. So this method is dependent on the accuracy of sales forecast over time and also the factors that affect market and estimated cost. यहाँ पर अगेन हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी सेल्स कितनी होगी, हमें कितना फ़ायदा मिलेगा. वो एक्यूरेट, अगर आपकी सेल्स का जो फोरकास्ट है वो ख़राब हुआ तो आपका पे आउट प्लान भी ख़राब हो जाएगा. ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोविड टाइम पे अगर आपने जनवरी 2020 में एक नया ब्रांड लॉन्च करा था कपड़ों का, इफ़ यू लॉन्च्ड अ ब्रांड ऑफ क्लोथ्स इन 2020 January and you plan that you will advertise for 4 months and then you will have sales in the next 1 year, but due to COVID people are not buying apparel and formal wear, so you are not getting as much sales as you expected because of the external environmental factors which were uncontrollable. So whatever your payout plan was, it has to be reworked. सो आपने अपना पे आउट प्लान बनाया था कि 4 महीने ऐड देंगे, 1 साल हमें फ़ायदा पहुंचेगा, वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा क्योंकि कोविड हो गया एंड पीपल आर नॉट बाइंग क्लोथ्स विच ऑफिस वेयर क्लोथ्स, फॉर्मल वेयर क्लोथ्स. तो आपने जो पे आउट प्लान बनाया था वो आपको रीवर्क करना पड़ेगा. सो यहाँ पर इस मेथड के नेगेटिव्स क्या है कि हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है इन प्रैक्टिस. लास्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव मॉडल. इन क्वांटिटेटिव मॉडल हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज़ करते हैं और उसके द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना एडवर्टाइजिंग बजट चाहिए. सो वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड क्वांटिटेटिव मॉडल टू डिसाइड हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू एडवर्टाइजिंग. For example, multiple regression is one technique which could be used to tell that how much contribution of advertising is there to sale, and accordingly you can justify that this much amount of sales is to be increased, so we want this much increase in advertising budget also. So multiple regression से आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में से एडवर्टाइजिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है सेल को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप बजट बना सकते हैं कि इतनी सेल्स थी तो इतना एडवर्टाइजिंग बजट था, अब हमें इतना चाहिए होगा, या हमारी सेल्स ऑलरेडी ज़्यादा है, कंपटीशन नहीं है, तो हम इतना भी रख सकते हैं. सो ऑल दिस इज़ डन बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल. नेगेटिव्स या डिसएडवांटेजेस: इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड टेक्निकल स्किल. आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको टेक्निकल पीपल चाहिए, एंड देन ऑल दीज इन्वॉल्व मनी. So it is expensive, time consuming process. So these were the methods. हमने अभी तक पढ़ा कि बजट को सेट कैसे किया जाता है. अगर आपने बजट बनाना है तो वो आप किन किन तरीक़ों से बना सकते हो. What all methods you can use. Once you have the budget with you, now you have to allocate. एक बार ये आपके पास आपको आपका बजट मिल गया, अब एडवर्टाइजमेंट बजट हो गया फिक्स, अब आपको उसको अपनी एक्टिविटीज़ में या टास्क में बांटना है. So you have to allocate it. What does allocation mean? Allocation means determining which market, which product and which promotional element will receive what amount of funds.
तो आपका जो बजट सेट हुआ एडवर्टाइजिंग का, वो आप बांटोगे। एक कंपनी है आपकी, आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो या 4 जगह पर ऑपरेट कर रहे हो, तो उन 4 में से किसको कितना मिलेगा? सबको इक्वल मिलेगा, एक को कम मिलेगा, एक को ज़्यादा मिलेगा। ये हुआ एलोकेशन। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं, आइए देखें। सो नाउ वी सी द फैक्टर्स दैट हैव टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एलोकेशन ऑफ बजट। ये हम पढ़ रहे हैं, जब आपने बजट एलोकेट करना है तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हमने पढ़ा था कि अपने बजट सेट करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बजट तो हमको मिल गया, अब हम अपना बजट अपनी ही एक्टिविटीज़ में कैसे बांटेंगे, वो किन चीज़ों पर डिसाइड होगा। पहला है मार्केट साइज़। मार्केट साइज़ मीन्स कि आपका मार्केट छोटा है या बड़ा है। सो मेरे 4 प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक प्रोडक्ट है मेरा नॉर्थ इंडिया में और एक प्रोडक्ट है मेरा पूरे इंडिया में। सो 1 प्रोडक्ट आई एम सेलिंग इन नॉर्थ इंडिया ओनली एंड 1 प्रोडक्ट आई एम सेलिंग अक्रॉस इंडिया। सो जहाँ नॉर्थ इंडिया वाला प्रोडक्ट है वहाँ बजट कम होगा और अक्रॉस इंडिया वाले में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपका मार्केट साइज़ बड़ा है, राइट। देन मार्केट शेयर गोल्स, न्यू ब्रांड वर्सेस मैच्योर ब्रांड। आपके मार्केट शेयर के गोल क्या हैं? आपका ब्रांड नया है, कोई नहीं जानता, और आपको अपने ब्रांड अवेयरनेस करनी है और मार्केट को कैप्चर करना है। देन यू नीड मोर मनी, मोर बजट यू नीड। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड है, सब आपके प्रोडक्ट को जानते हैं और उसके अच्छी सेल्स होती है, वो मैच्योर ब्रांड है, तो आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू द न्यू ब्रांड। ये ध्यान रखिए कि आपके पास बजट है लिमिटेड, राइट, ये आपका बजट है और इसी पैसे को आपने बांटना है, इसी पैसे को आपने अपने 4 प्रोडक्ट या 4 मार्केट्स में बांटना है, राइट। सो एक को कितना मिलेगा उससे इम्पैक्ट आएगा दूसरे पे, तो ये हम कंपैरेटिव बात कर रहे हैं। सो अगर आपका मार्केट छोटा है कि आपका मार्केट स्कैटर्ड है, आपका मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जितने में हो उतने में ही रहना चाहते हो, तो आपका एडवर्टाइजिंग बजट उतना ही रह सकता है। लेकिन अगर आप कम थे और अब आपको ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो आपको आपका बजट एलोकेशन इस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देन थर्ड इज़ मार्केट पोटेंशियल। सो मेरे 4 जो प्रोडक्ट हैं उसमें से एक प्रोडक्ट तो है ग्रोथ स्टेज पर और एक है डिक्लाइन स्टेज पर। डिक्लाइन मतलब मेरा प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला है। सो वन ऑफ माई प्रोडक्ट इज़ गोइंग डाउन एंड सेल्स आर गोइंग डाउन एंड द अदर प्रोडक्ट इज़ इन द ग्रोथ स्टेज एंड इट्स sales are increasing. So the one whose sales are increasing has more potential, वहाँ पर मेरे को ज़्यादा potential दिखता है, मैं वहाँ पर ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। और जहाँ मेरा मार्केट डाउन जा रहा है, जहाँ मेरी सेल्स डाउन जा रही है, वहाँ पर आई विल स्पेंड लेसर ऑन एडवर्टाइजिंग इफ़ यू डू नॉट विश टू रिवाइव दैट प्रोडक्ट। अगर आप दोबारा से उस प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो। द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, which means who is your top management, what are their leadership style, what are their thinking, what is the organization structure, the power, the politics। ये सब important है डिसाइड करने में कि किस प्रोडक्ट और किस मार्केट को कितना पैसा मिलेगा, राइट। सो ये 4 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं या आपके जो मार्केट हैं उनमें कैसी एलोकेशन होगी बजट की। सो टू वाइंड अप, वी हैव सीन एडवर्टाइजिंग बजट का मीनिंग क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है कि इन्वेस्टमेंट होता है, कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग बजट सेट करते टाइम आपको ध्यान रखने चाहिए, व्हाट आर द अप्रोचेस टॉप डाउन एंड बॉटम अप एंड द डिफरेंट मेथड्स इन बोथ अप्रोचेस, एंड देन फाइनली वी हैव स्टडीड बजट एलोकेशन। आई होप that the topic is clear to you, and if you have any queries you can always ask them in the comment section below. Thank you and have a nice day.